ان دنوں میں ضلع جنگ کے ایک دور دراز تھانے میں تعینات تھا کہ ایک روز میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک سنسنی خیز خبر میری منتظر تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر مجھے اطلاع دی، ملک صاحب، 7 والے پنڈ میں ایک واردات ہو گئی ہے۔ واردات؟ کس قسم کی واردات؟ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا۔ جناب، ایک گبرو جوان کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے، اس نے بتایا۔ تھوڑی دیر پہلے 2 بندے آئے تھے تھانے، انہوں نے بتایا کہ قتل ہونے والے جوان کی لاش ادھر کھیتوں میں پڑی ہے۔ تم 7 والے کون سے پنڈ کی بات کر رہے ہو سکندر علی؟ ہمارے تھانے سے قریب تر 2 گاؤں ہیں، ایک گاؤں گلاب پور اور دوسرا نذیر آباد۔ جی، میں گلاب پور کا ذکر کر رہا ہوں، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ پھر میں نے کانسٹیبل سے پوچھا، قتل کی واردات کی اطلاع لے کر آنے والے کہاں ہیں؟ انہیں میرے پاس بھیجو۔ جناب، وہ اطلاع دینے کے بعد واپس چلے گئے ہیں، کانسٹیبل نے بتایا۔ انہیں جلدی تھی، ویسے بھی میں نے ان کی تاریخ اور جغرافیہ معلوم کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی بتاؤ۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ان میں سے ایک کا نام ہے فیاض اور دوسرے کا نام ہے یوسف، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ ان دونوں بندوں کا تعلق بھی گلاب پور سے ہی ہے جناب۔ اور مقتول کے حد و رابطے کے بارے میں کیا پتہ چلا؟ وہ گبرو جوان بھی گلاب پور ہی کا رہنے والا ہے ملک صاحب، سکندر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ اس کا نام ناصر ہے۔ ناصر کبڈی کا بڑا ماہر کھلاڑی تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے سکندر، جائے وقوع پر پہنچنے کی تیاری کرو۔ اچھا جی، اس نے صابت میں گردن ہلائی اور میرے کمرے سے نکل گیا۔ 15-20 منٹ کے اندر کانسٹیبل نے آ کر مجھے بتایا، ملک صاحب، میں نے 2 صحت مند گھوڑوں کا بندوبست کر دیا ہے، آپ کا جب بھی حکم ہو ہم روانہ ہو جائیں گے۔ بس تو ہم ابھی اور اسی وقت روانہ ہو رہے ہیں، میں نے کرسی چھوڑتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کانسٹیبل سکندر علی اور گھوڑوں پر سوار ہو کر جائے وقوع کی سمت رواں تھے۔ گاؤں کے اندر پہنچ کر معلوم ہوا کہ ناصر کی لاش کھیتوں میں پڑی ہے۔ چند لوگوں کی نگرانی بلکہ رہنمائی میں ہم جائے وقوع تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ مقام کھیتوں کے بیچوں بیچ گاؤں سے نصف فاصلے پر واقع تھا۔ وہ ایک ادھورا کمرہ تھا جس کی اب چھت دکھائی دے رہی تھی، نہ ہی دیواریں سلامتی۔ ناصر نامی نوجوان کی لاش اسی آدھے ادھورے کمرے کے سامنے پڑی تھی۔ جائے وقوع پر درجن سے زائد افراد کا جھمگٹا لگا ہوا تھا۔ میں نے سب کو پیچھے ہٹایا اور اکڑو بیٹھ کر لاش کا معائنہ کرنے لگا۔ بلا شبہ وہ ایک سجیلا گھمرو جوان تھا۔ میں نے اس کی عمر کا اندازہ 22 سے 25 کے درمیان قائم کیا، جو بعد ازاں درست ثابت ہوا۔ وہ ایک مضبوط نمایاں قد کاٹ کا پہلوانی بدن کا مالک جوان تھا، رنگت گندمی اور سر کے بال گھنگریارے۔ قدرت نے اسے کثرتی بدن کی خوبصورتی کے علاوہ مردانہ وجاہت سے بھی دل کھول کر نوازا تھا، لیکن اس وقت وہ زندگی سے خالی گوشت پوست کے ایک ڈھیر سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ ناصر کی حسرتناک موت کا مجھے دلی صدمہ ہوا تھا۔ میں نے باریک بینی سے جب ناصر کی خون لاش کا جائزہ لیا تو مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً دقت محسوس نہ ہوئی کہ اسے کسی تیزدھار دھارے، چھرے یا خنجر کے موتز وار کر کے بڑی بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں، بازوؤں پر موجود زخموں کے نشانات دیکھ کر واضح ہو جاتا تھا کہ اس نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر حملہ آور نے ایک نہیں چلنے دی تھی اور بالآخر اسے بے بسی کی موت کو گلے لگانا پڑا تھا۔ گاؤں والے ناصر کو کبڈی کے حوالے سے گلاب پور کی آبرو سمجھتے تھے۔ ایسی بے بسی کی موت یہ سوچنے پر مجبور کرتی تھی کہ حملہ آور ایک سے زیادہ افراد تھے، ورنہ وہ گھمرو کی ایک قاتل کے بس کا تو نہیں تھا۔ یہ بات طے تھی کہ اسے کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت گھیر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، گویا یہ قتل کی ایک معظم واردات تھی۔ میں نے لاش کے تفصیلی معائنے کے بعد اس پر ایک چادر ڈلوا دی اور موقع پر موجود لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ سب سے پہلے جو شخص میرے سامنے آیا، اس کی حالت بڑی غیر ہو رہی تھی۔ وہ 60 کے آس پاس کا ایک سانولا آدمی تھا، اس کا نام بشیر لوہار معلوم ہوا تھا۔ وہ منت بھرے لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوا، تھانے دار صاحب، کسی ظالم نے میرے ناصر کی جان لے لی ہے۔ اس کے درد بھرے سوال نے مجھے بتایا کہ وہ مقتول ناصر کا باپ تھا۔ میں نے بشیر لوہار کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی بھرے لہجے میں کہا، چاچا، ابھی تو میں نے تفتیش کا آغاز کیا ہے، تم فکر نہ کرو، تمہارے بیٹے کا قاتل بہت جلد میری گرفت میں ہوگا۔ وہ روحان سی آواز میں بولا، میرا بیٹا تو گیا اس دنیا سے، قاتل اگر آپ کی گرفت میں آ بھی گیا تو اس کی گرفتاری سے میرا بیٹا تو واپس نہیں آئے گا نا۔ غم کی شدت نے بشیر لوہار کو حواس واختہ کر دیا تھا۔ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا تھا۔ ان لمحات میں اسے صرف ایک ہی بات یاد تھی کہ اس کا جوان بیٹا قتل کر دیا گیا تھا۔ وہ اس کے علاوہ کچھ اور سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مجھے اس کی حالت پر بہت ترس آیا۔ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، چاچا، آپ ایک طرف آرام سے بیٹھ جاؤ، میں تم سے بعد میں تسلی سے بات کرتا ہوں۔ اچھا جی۔ وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس وقت سورج کافی اوپر اٹھ چکا تھا اور اچھا خاصا پریشانی کا باعث بھی بن رہا تھا۔ مئی کا مہینہ تھا اور جون تو ویسے بھی گرمی کے لحاظ سے اپنی قیامت خیز سب مہینوں پر سبقت رکھتے تھے۔ کھیتوں کے اندر
تحت نگاہ تیز چمکیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے بچے لوہار کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اپنا عیش بھرے لہجے میں کہا، چاچا آپ اپنے گھر چلیے، موسم بہت خوفناک ہو رہا ہے، میں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا تمہارے گھر آؤں گا، پھر بات کریں گے، گرم ٹھنڈے سب موسم دیکھے ہیں، ساری زندگی گزاری ہے تھانے دار پتر۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے مجروح لہجے میں بولا، یہ دھوپ اور گرمی میرا کیا بگاڑے گی، میں ادھر درخت کے نیچے جاتا ہوں۔ لمحاتی توقف کے بعد وہ دکھی لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، میری سب سے قیمتی متاع، میرا دل کا ٹکڑا زندگی کی بازی ہار گیا، اس سے بڑا صدمہ کیا ہوگا میرے لیے۔ میں نے مقتول کے بعد بشیر لوہار سے زیادہ بحث نہیں کی اور اسے ایک بندے کے ساتھ ایک سایہ درخت کی جانب بھیج دیا۔ میں فی الحال اس کے لیے اس سے زیادہ ہمدردی نہیں کر سکتا تھا۔ جائے وقوع کا میں نے جو نقشہ تیار کر لیا تھا، آلۂ قتل کا کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ موقع پر موجود لوگوں کے بیانات کا سلسلہ بھی میں نے جاری رکھا تھا۔ میری نظر میں سب سے اہم مسئلہ اس وقت مقتول کی لاش کو ہسپتال بھجوانے کا تھا۔ میں نے فی الفور ناصر کی لاش پوسٹ مارٹم کی غرض سے سرکاری ہسپتال بھجوا دیا۔ کانسٹیبل سکندر کو بھی میں نے لاش کے ساتھ ہی روانہ کر دیا۔ میں نے وہاں موجود لوگوں سے گھما پھرا کر قتل کی اس لرزہ خیز واردات کے بارے میں مختلف سوالات کیے، لیکن کوئی بھی مجھے ایسا جواب نہ دے سکا جو میرے لیے تسلی کا باعث ہوتا، جو تفتیش کو آگے بڑھانے میں میری مددگار ثابت ہو سکتا۔ میں نے 2 افراد سے بھی پوچھ گچھ کی کہ اس ہولناک واقعے کی اطلاع دینے تھانے میں جو پہنچے تھے۔ فیاض اور یوسف بھی اس قتل کے حوالے سے کچھ نہیں جانتے تھے۔ آخر میں نے اس آدمی سے سوال و جواب کیے جس نے آج صبح ناصر کی لاش کو اس ادھورے کمرے کے باہر پڑے دیکھا تھا۔ اس بندے کا نام الیاس اور عمر 50 سے تجاوز تھی۔ پیشے کے اعتبار سے الیاس کمار تھا۔ وہ مختلف قسم کے چھوٹے بڑے برتن تیار کیا کرتا تھا اور ظاہر ہے ان برتنوں کی تیاری کے لیے چکنی مٹی کی ضروریات ہوتی تھی۔ الیاس تم صبح کہاں جا رہے تھے؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے سوال کیا۔ سرکار، ملا کی دوڑ مسجد تک، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ میں جد پشت کمار ہوں جناب، میرے ہاتھ مٹی کے ساتھ کھیل کر اپنے برتنوں کی شکل دیتے ہیں بس۔ سرکار نمازی توقف کر کے اتنی ٹھنڈی سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، میں بھی مٹی کی تلاش میں صبح گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہوں، آج بھی میں اسی کام سے جا رہا تھا۔ موتی بھی میرے ساتھ تھا۔ ناصر کی لاش کو ہم دونوں کو دیکھ کر جھٹکا لگا تھا۔ موتی؟ موتی کون؟ موتی میرے پالتو کتے کا نام ہے تھانے دار صاحب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اسے آپ گاؤں کی گلیوں میں آوارہ پھرنے والا کوئی کتا نہ سمجھیں، موتی بہت ہی سمجھدار کتا ہے۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ الیاس ایک بہت ہی باتونی شخص۔ میں نے اس باتونی شخص کو واپس موضوع کی طرف لاتے ہوئے کہا، تم نے ناصر کی لاش کو دیکھا تو پریشان ہو گئے، پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے لاش کو دیکھ کر اونچی آواز میں چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا، وہ جواب دیتے ہوئے بولا۔ اس وقت کھیتوں میں اکا دکا لوگ اپنے کام کا آغاز کر چکے تھے۔ میری آواز پر وہ فوراً متوجہ ہو کر میری جانب لپکے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہاں موجود ہر شخص کو پتہ چل گیا کہ بشیر لوہار کے لڑکے ناصر کو کسی نے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ وہ اپنی طویل بات ختم کر کے خاموش ہوا تو میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، کیا تم روزانہ صبح اپنے موتی کے ساتھ اسی راستے سے گزرتے ہو؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی، میرا راستہ تو ذرا ہٹ کے ہے۔ اس نے ایک دوسری جانب اشارہ کیا۔ میں نے پوچھا، آج اس کمرے کے قریب سے گزرنے کا کوئی خاص سبب تھا؟ جی ہاں، خاص سبب تھا، وہ صاحب سے سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ کیا سبب تھا؟ میں تو جناب ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے راستے پر جا رہا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا کہ اچانک موتی نے پہلے ہلکے ہلکے گرانا پھر بھونکنا شروع کر دیا۔ موتی کی اس حرکت پر میں چونک اٹھا، کیونکہ میرا تجربہ یہ ہے کہ موتی جب بھی اس قسم کا رد عمل ظاہر کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور نازل ہوتی ہے، اور آج بھی بالکل ویسا ہی ہوا۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھما، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں نے موتی کی حرکت پر توجہ دی اور اپنے راستے سے ہٹ کر اس کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا اور یہاں پہنچ گیا۔ اس کے بعد کی بات میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ریاض کی وضاحت انتہائی قابل یقین اور سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ جانور خصوصاً کتا بہت سے ایسے معاملات کا ادراک کر لیتا ہے جو انسان کے بس کی بات نہیں، خاص طور پر اس کے سونگھنے کی حس تو ناقابل یقین حد تک تیز ہوتی ہے۔ تم نے یہاں پہنچ کر ناصر کی لاش دیکھی اور چلا کر لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، کیا اس وقت تم نے آس پاس کسی مشکوک بندے کو دیکھا تھا؟ کیسا مشکوک بندہ؟ کوئی بھی ایسا بندہ جن پر ناصر کے قاتل ہونے کا شک کیا جا سکے؟ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، نہیں جناب، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، ایسا کوئی بندہ مجھے تو نظر نہیں آیا۔ میں نے مزید 2-4 سوال کے بعد الیاس کمار کو فارغ کر دیا اور مقتول ناصر کے باپ بشیر ناصر لوہار کی جانب چڑھ پڑا۔ بشیر لوہار کا گھر گلاب پور کے میں واقع تھا۔ وہ ایک مختصر سا خاندان تھا، میاں بیوی اور 2 بچے، جن میں سے ایک اپنے خالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ ناصر سے چھوٹی اس کی بہن رخسانہ تھی، جس کی عمر لگ بھگ 16 سال ہی رہی ہوگی۔ بشیر لوہار نے اپنے گھر کے بیرونی کمرے میں بٹی لگا رکھی تھی، جہاں وہ دن بھر
लोहे से खेलता रहता था। बस इसकी ज़िंदगी यही थी और वो अपनी ज़िंदगी से बहुत मुतमईन था। ताहम नासिर की अलमनाक मौत ने गोया उसकी कमर तोड़कर रख दी थी। बशीर मुझे अपने घर के अंदरूनी हिस्से में ले गया और बरामदे में बिठाया और ख़ुद भी मेरे सामने ही बैठ गया। मैंने निहायत ही संजीदगी से कहा, बशीर चाचा, तुम्हारी बेटी के साथ जो भी अफसोसनाक वाक़या पेश आया, मुझे इसका बहुत दुख है। मैं तुम्हारे इस गम में बराबर का शरीक हूँ। मेरी अव्वलीन कोशिश यही होगी कि मैं ज़ाकी के ज़िम्मेदार को जल्द से जल्द कानून की गिरफ्त में लाकर सख्त तरीन सज़ा दिलवाऊँ, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे भरपूर तावन की ज़रूरत पेश आएगी। बशीर की बीवी जुबैदा बीवी भी मेरे सामने आकर बैठ गई थी। मैंने जो बात बशीर से कही थी वो इसने भी सुन ली थी। बशीर के जवाब से पहले वो बोल उठी, थानेदार जी, बताएं हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। उसने गमज़दा लहजे में कहा, हमारी तो दुनिया ही अंधेर होकर रह गई है। मैं समझ सकता हूँ कि ये कितना बड़ा वाक़या है। अगर मैं हाथ पर हाथ रखे बैठा रहा तो फिर कभी भी ये गुत्थी नहीं सुलझ सकेगी। बशीर की बानिस्बत उसकी बीवी में ज़्यादा दमख़म नज़र आता था। मेरी बात के जवाब में उसने कहा, मैं भी यही चाहती हूँ कि जिस जालिम ने मेरे नासिर से हयाती छीनी वो जल्द अज जल्द अबरतनाक अंजाम को पहुँचे। लम्हाती तौक़ुफ़ करके इसने गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए बड़े अज़म से बोली, बताएं आपको हमसे किस किस्म का ताउन दरकार है। नासिर का कत्ल कौन कर सकता है ये बताना तो बहुत मुश्किल है जनाब, लेकिन जब तक आप किसी पर शक जाहिर नहीं करेंगे तफ्तीश की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकेगी। बशीर ने माज़ूक़ाना अंदाज में कहा, नासिर तो पूरे गांव की आंख का तारा था। अभी पिछले महीने इसने कबड्डी का टूर्नामेंट जीता था। अगर नासिर गुलाबपुर की कबड्डी की टीम में ना भी होता तो जीत का एजाज़ नज़ीराबाद के हिस्से में आना था। इस टूर्नामेंट में 4 गाँव की टीमों ने हिस्सा लिया। सुल्तान निगर तो इब्तिदा में ही कट गई थी। असल मुकाबला तो गुलाबपुर और नज़ीराबाद के दरमियान था। फाइनल मैच में नासिर की उम्दा कारकर्दगी ने गुलाबपुर का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया था। ये टूर्नामेंट हर साल अप्रैल के महीने में मुनक़िद कराया जाता है। बशीर लाहौर ने कबड्डी टूर्नामेंट के हवाले से बात ख़त्म की तो मैंने सवाल किया, चाचा, तुम्हारी बेटी की कबड्डी की भी मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है। मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि नासिर अपने गाँव की आबरू था, लेकिन मैंने बात उधरी छोड़कर गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, चाचा, तुमने भी एक ज़िंदगी गुजारी है और ये बात आपके भी तजुर्बे में आई होगी कि जहाँ किसी इंसान के 10 दोस्त होते हैं वहाँ उसका एक आध दुश्मन भी ज़रूर होता है। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब। वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर सकता। मुझे इसी 10वें आदमी की तलाश है। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, जिस जालिमाना अंदाज में नासिर को मौत के घाट उतारा गया है वो किसी बदतरीन दुश्मन का ही काम हो सकता है। ऐसे सफाक शख्स सिर्फ आप लोग ही पहुंचा सकते हैं मुझे। बशीर लॉन ने दरारी अंदाज में अपनी परेशानी को मसला, फिर उलझन अंदाज में बोला, समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा कि ऐसा बंदा कौन हो सकता है। मैंने बशीर की बीवी जुबैदा को देखते हुए पूछा, तुम याद करने की कोशिश करो, गुलाबपुर में कौन तुम्हारे बेटे को सख्त नापसंद करता था? कभी किसी के साथ उसका झगड़ा हुआ होगा? नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली, नासिर तो बहुत ही सुलझा हुआ और अमन पसंद इंसान था। गाँव में कभी इसका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। और गांव से बाहर? मैंने के बाद दीगरे दोनों की तरफ देखा। बाहर भी किसी से इसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। बशीर लोहार ने जवाब दिया, वो सारा दिन मेरे साथ काम में मसरूफ़ रहता था। सुबह शाम वर्जिश वगैरह के लिए अखाड़े में चला जाता था। ये अखाड़ा किस तरफ वाक़ है? मैंने किसी फौरी ख्याल के तहत पूछ लिया। ट्यूबवेल के करीब है जी, उसने जवाब दिया। खेतों में? ट्यूबवेल के नाम पर मैं चौंका। क्या तुम इस ट्यूबवेल की बात करो जो पहले इस जगह हुआ करता था जहाँ से नासिर की लाश मिली है? जी हाँ, ये ट्यूबवेल किसी ज़माने में इसी कमरे में लगा हुआ था, उसने तायदी लहजे में कहा। लेकिन ये काफ़ी अरसे पहले की बात है। बशीर चाचा, मेरी तजुर्बाकार निगाह बताती है कि तुम्हारे बेटे को पिछली रात के दरमियानी हिस्से में कत्ल किया गया है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, तुमने बताया कि नासिर सुबह शाम अखाड़े में कसरत वगैरह के लिए जाया करता था, फिर वो आधी रात को घर से बाहर क्या कर रहा था, और वो भी अखाड़े से 100-200 गज दूर? ये बात तो हमारी भी समझ में नहीं आ रही थानेदार साहब। सुबेदा बीवी ने तवक्कुर आमेज नज़र से मुझे देखा। नासिर पिछली रात इधर क्या करने गया था? बशीर लौर बोला, कल शाम से पहले वो वर्जिश करने अखाड़े में भी गया था। फिर हम चारों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और थोड़ी देर के बाद सोने के लिए लेट गए। आप लोग रात में सोते कहाँ हैं? मैंने इधर उधर नुगा दौड़ाते हुए सवाल किया। मौसम ऐसा है कि कमरों के अंदर घुसकर सोना मुमकिन नहीं रहा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब, आजकल तो दिन रात भी खासी गर्मी हो रही है। बशीर ने जवाब दिया। मैं, जुबैदा और हमारी बेटी रुखसाना घर के पिछले हिस्से में चारपाई बिछाकर सोते हैं। और नासिर, वो रात को कहाँ सोता है? वो छत पर सोता था जी, जुबैदा ने जवाब दिया। फिर बशीर ने जुबैदा की बात को आगे बढ़ाया। सिर्फ सर्दियों के 2-3 महीने ही वो अपनी चारपाई नीचे लाता था, वरना इसकी हमेशा से यही आदत थी कि वह रात को छत पर ही सोया करता था। मैं वो जगह देखना चाहता जहाँ नासिर रात को सोया करता था।
आप आए मेरे साथ। थोड़ी देर बाद हम दोनों छत पर थे, जहाँ पर एक चारपाई बिछी हुई थी। चारपाई पर एक तकिया और चादर भी मौजूद थी, और इन दोनों चीज़ों की मौजूदगी बताती थी कि रात वहाँ कोई सोया था। मैंने चारों जानिब निगाह दौड़ाकर माहौल का जायजा लिया। गुलाबपुर एक रिवायती गांव था। बिस्तर मकानों की छतें एक दूसरे के साथ मिली हुई थी। मैंने गिरदोपेश का अच्छी तरह जायजा लिया, और एक मरतबा फिर हम नीचे बरामदे में आ गए और बैठ गए। मैंने एक मरतबा फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया। आप लोगों को कब पता चला कि नासिर घर में मौजूद नहीं? आज सुबह ही पता चला था जी। बशीर लोहार ने बताया। नासिर को सुबह उठते काफ़ी परेशानी होती थी। उसकी आंख आसानी से नहीं खुलती थी। मैंने जुबैदा की ड्यूटी लगा रहती थी कि वली सुबह से जगा दिया करे। जुबैदा फजर की अजान के साथ ही जाग जाती थी। आज सुबह जब जी नासिर को उठाने के लिए छत पर पहुंची तो वो वहाँ मौजूद नहीं था। मौजूद नहीं था? क्या मतलब? मैंने इधराबी अंदाज में पूछा। इस वक्त जुबैदा लस्सी वाला जग और गिलास लेकर हमारे पहुंच गई। बशीर ने अपनी बीवी की तरफ इशारा करते हुए पूछा, आप इसी से पूछ लें कि आज सुबह छत पर इसने क्या नज़ारा देखा था। नज़ारा? मैंने सवालिया नज़र से बारी बारी इन दोनों के चेहरे देखे। बशीर लाहौर की दोनों बातों ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया था। मेरे अंदर से एक आवाज़ उठी कि इस केस का कोई सिरा मेरे हाथ आने वाला है। जुबैदा मेरे लिए गिलास में लस्सी उंडेल कर चुकी तो मैंने उससे पूछा, जुबैदा बीवी, बशीर चाचा क्या कह रहे हैं? आज सुबह जब तुम नासिर को उठाने छत पर पहुंची तो तुमने कौन सा नज़ारा देखा था? वो एक तरफ बैठ गई, ठंडी सांस खारिज करते हुए बोली, मैं तो जी रोजाना ही सुबह इसे जगाने जाया करती थी, लेकिन आज जो कुछ मैंने देखा वो पहले कभी नहीं देखा था। वही तो मैं जानना चाहता हूँ, मैंने ससराती आवाज में कहा। जना मैं रोजाना छत पर जाकर इसे जगा दिया करती थी। नासिर पुत्र उठ जा, सुबह हो गई है, वो वजाहत करते हुए बोली। दूसरी नहीं तीसरी आवाज पर वो आंखें मलता हुआ उठकर बैठ जाता था, लेकिन आज सुबह ऐसा कोई जवाब नहीं मिला तो मुझे हैरत हुई। मैंने झंझोड़ कर उसे जगाने की कोशिश की और इसे पता चला कि नासिर तो चारपाई पर मौजूद ही नहीं। वो लम्हे भर के लिए रुकी, एक बोझल सांस खारिज की, फिर बात मुकम्मिल करते हुए बोली, चारपाई पर चादर के नीचे तकिया रखा हुआ था। इस तरह के देखने में यही नजर आया कि वहाँ कोई सोया हुआ है। ओह, मैंने मुतासाफना अंदाज में कहा, इसका मतलब है पिछली रात नासिर अपनी मर्जी से घर से निकला था और वो नहीं चाहता था कि आप लोगों में से किसी को इसकी गैर हाजिरी का एहसास हो। जी, यही बात समझ में आ रही है, बशीर ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। इसका मतलब है? मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। वो इससे पहले भी यह हरकत करता रहा होगा। जनाब, अगर पहले नासिर ने ऐसा किया होता तो जुबैदा की नज़र में आ जाता। नहीं, मैंने बड़ी शिद्दत से नफ़ी में गर्दन हिलाई। इससे पहले वो इसलिए जुबैदा की पकड़ में नहीं आया कि सुबह से पहले वो वापिस आ जाया करता होगा। इन लम्हों में मेरा ज़हन नया तेज़ रफ्तारी से काम कर रहा था। सिर्फ ये एक नुक्ते ने केस खोलकर मेरे सामने रख दिया था। मुझे इस मामले में इश्क के मुश्क की बू आ रही थी। या आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? जुबैदा ने उलझन भरी नजरों से मेरी जानिब देखा। जुबैदा ने उलझन भरी नज़रों से मेरी तारीफ देखा। ऐसी कोई बात हमारे इल्म में तो नहीं। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने बारी बारी इन दोनों की आंखों में झांका। आप लोगों का बेटा रात की तारीख में किसी से मिलने घर से बाहर जाया करता था। ज़्यादा इम्कान इसी बात का है कि वो कोई लड़की हो। बताएं, नासिर का गाँव में किसी लड़की के साथ कोई चक्कर चल रहा था? चक्कर? दोनों ने बेचैनी से एक दूसरे की तरफ देखा। फिर बशीर ने मुझसे कहा, थानेदार जी, नासिर इस किस्म का लड़का नहीं था। वो तो गुलाबपुर की लड़कियों और औरतों को अपनी माँ बहनें समझता था। वो कभी किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था। मैं मान ही नहीं सकता कि इसका किसी लड़की से कोई मोहब्बत का मामला ना चल रहा हो। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, वो पिछली रात इसी लड़की से मुलाकात करने खेतों में पहुंचा था। अगर आप लोग मुझे इस लड़की के बारे में साफ साफ बता दो तो मैं आसानी से नासिर के कातिल तक पहुंच सकूंगा। लम्हाती तौकीफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर हमतमी लहजे में कहा, वही लड़की सही मानों में बता सकती कि पिछली रात इधर खेतों में क्या वाकया पेश आया था। जनाब, आप हमसे बड़ी से बड़ी कसम ले लें, हमें नासिर की किसी भी किस्म की ऐसे मामले की खबर नहीं। बशीर ने मिन्नत आमिज लहजे में कहा, और न ही हम किसी ऐसी लड़की को जानते हैं। बशीर चाचा, इश्क और मुझे छुपाए नहीं छुपते, और तुम्हें खाने या खिलाने से पुलिस वालों का काम नहीं चलता। और मैं बहुत जल्द इस बात का पता चला लूँगा कि पिछली रात तुम्हारा बेटा किससे मिलने खेतों में पहुँचा था। लेकिन अच्छा कि आप लोगों से मुझे पता चलता। जुबैदा ने बेबसी से कहा, अगर हमें इस मामले की ज़रा सी भी सुनगुन होती तो हम आपको ज़रूर बताते। हम ये नहीं कहते कि आपका अंदाज़ा गलत है या झूठ। बशीर ने आजिज़ी से कहा, लेकिन हकीकत यही है कि हमें इस हवाले से कुछ भी नहीं पता। ठीक है, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, मैं आप लोगों की बात का यकीन कर लेता हूँ। अक्सर माँ बाप को अपनी औलाद की सरगर्मियों की खबर नहीं होती और वो इन्हें मासूम और बेखता ही समझते रहते हैं। फिर जब इनका कोई कारनामा सामने आता है तो दांतों में उंगलियां दबाकर रह जाते हैं। नासिर के मामले में भी बहुत जल्द ऐसा होगा। मैंने लम्हाती तौक़ुफ़ करने के बाद बारी बारी दोनों के चेहरों का जायजा लिया, फिर पूछा, ये बताएं, गुलाबपुर में नासिर की सबसे ज़्यादा गहरी दोस्ती किसके साथ थी? जमील के साथ। वो यकजबान होकर बोले। मैंने ठोस अंदाज में कहा, मुझे यकीन है जो बात आपके इल्म में नहीं वो जमील को ज़रूर पता होगी। क्या आप में से किसी कोई जमील को यहाँ बुला सकता है? मैं इसे कुछ पूछगछ करना चाहता हूँ।
वो तो हमारा पड़ोसी है जनाब, बशीर ने बताया। इधर साथ वाले घर में रहता है, लेकिन अभी इससे मुलाकात नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती मुलाकात? मैंने चौंक कर कहा। वो दिन वो 2 दिन से टोबा टैक्सिंग गया हुआ, मैंने इसने जवाब में बताया। मैंने कल ही जमील के बारे में नासिर से पूछा था और उसने बताया था जमील परसों वापस आएगा, यानी कल। ठीक है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, लेकिन मैं फिर भी इसके घर वालों से पूछकर अपनी तसल्ली करना चाहता हूँ। जमील के बाप की परचून की दुकान है और वह इस वक्त दुकान पर ही होगा। बशीर ने कहा, आप आए मेरे साथ, मैं आपको कफील से मिलवा देता हूँ। मैं उठकर खड़ा हो गया और पूछा, क्या कफील की दुकान यहाँ से दूर है? नहीं जी, उसने घर के अंदर ही बैठक में दुकान खोली हुई है, उसने जवाब में बताया। एक दरवाजे से निकलेंगे तो साथ ही आपको कफील की दुकान नजर आ जाएगी। हम दोनों इसके घर से बाहर निकल आए। बशीर लॉन ने बिल्कुल ठीक कहा था। जैसे ही मैंने इसके दरवाजे से कदम बाहर निकाला, कफील की परचून वाली दुकान मेरी आंखों के सामने आ गई। आते वक्त मैंने उसकी दुकान की तरफ ध्यान नहीं दिया था। कफील की उम्र 40 से चढ़ी हुई थी। वो एक दुबला पतला दराज का शख्स था। हल्की हल्की मूछें रखी हुई थी और सर पर सफ़ेद टोपी भी लगा रखी थी। मैंने लगभग 15 मिनट के साथ इसकी गुफ्तगू की। मुझे देखकर अपने काम को समेट बैठा था और पूरी तवज्जो मुझ पर मुश्तमिल कर दी थी। इसे नासिर की मौत का दिली सदमा था, इसलिए नहीं कि मकतूल नासिर के बेटे का गहरा दोस्त था, बल्कि इसलिए कि वो नासिर की कबड्डी को बेहद पसंद करता था। वो खुद भी जवानी में ये खेल खेल चुका था। इसने पूरी कोशिश की थी कि इसका बेटा जमील भी पहलवानी और शाहजूरी के कामों में हिस्सा ले, लेकिन जमील ने इसे सख्त मायूस किया था। वो जमील को इस किस्म का कोई शौक नहीं रहा था। कफील से होने वाली गुफ्तगू इस लिहाज से बेनतीजा रही कि वो नासिर के कत्ल के हवाले से मुझे मालूमात फराहम नहीं कर सका था। वो भी मकतूल के किसी दानी दुश्मन के बारे में नहीं जानता था। अलबत्ता इस उम्र की इसने भी तस्दीक की थी कि जमील कल टोबा टैक्सिंग से वापस आ जाएगा। कफील, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, जमील जैसे ही गुलाबपुर पहुंचे तुम इसे मेरे पास थाने भेज देना। मुझे उम्मीद है वो इस कत्ल पर ज़रूर कुछ रोशनी डाल सकेगा। जी, आप फिक्र ना करें, मैं खुद इसे लेकर आपके पास आऊँगा। मैं कफील की दुकान से बाहर निकल आया। मैंने वापसी का इरादा ज़ाहिर किया तो बशीर लॉन ने मुझसे पूछा, थानेदार साहब, नासिर की लाश कब तक मुझे मिल जाएगी? मैंने दुखी बाप की दिली कैफियत को बखूबी समझ सकता था। मैंने हमदर्दाना अंदाज में कहा, बशीर चाचा, मुझे उम्मीद है कल शाम तक नासिर की लाश अस्पताल से वापस आ जाएगी, लेकिन तुम अपने ध्यान में परसों का दिन रखो। तुम्हें इंतजामात के सिलसिले में परेशानी नहीं होगी। लम्हाती तौफ़ुफ़ के बाद मैंने सवाल किया, तो मेरी बात समझ रहे हो ना? जी ही, उसने साबत में गर्दन हिलाई। मैंने उसी से राहत दी, उसके दुख दर्द में अपनी मुकम्मल शरकत और शमूलियत का यकीन दिलाया और दोबारा आने का कहकर वापस आ गया। मेरा दिल किसी तरह इस बात को कबूल करने से इनकारी था कि माशूक का के नासिर का किसी लड़की के साथ कोई चक्कर ना चल रहा हो। मेरा ध्यान बड़ी रफ्तारी से काम कर रहा था। मैंने बड़ी तवज्जो और तफसील के साथ जैवको का नक्शा तैयार किया था। वो एक ऐसा मकाम था जो चोरी छुपे की मुलाकातों के लिए बड़ा मौजूद साबित हो सकता था। अधूरा कमरा, अगरचे छत दरवाजों से बेनियाज था, ताहम इसकी बची कुछ दीवारें प्रेमियों की खुफिया मुलाकात के लिए बेहतरीन आर्ट फराहम करती थी। चूँकि वो एक ऐसा ही कमरा था, लिहाजा इस हवाले से इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा सकता था। मेरी सोच की सुई फिर से घूम फिर कर इसी लड़की पर आ रुकी थी। एक ऐसी लड़की जो मकतूल से मोहब्बत करती थी, एक ऐसी लड़की जो मकतूल से बेपनाह चाहता था। वो दोनों रात की तारीकी में छुप कर मिलते थे। मेरी सोच की सनसनी क़ैदी का दावा था कि वो लड़की भी मौजू गुलाबपुर से ही ताल्लुक़ रखती थी। मेरे इस अंदाज और सोचने का ख़ास सबब था। नासिर का कातिल जो कोई भी था या थे, वो नासिर और मुन्ना लड़की के ताल्लुकात से वाकिफ़ था और ये ताल्लुकात इसके लिए इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त थे। अगर इसी नतीजे पर इत्फाक कर लिया जाता तो फिर ये तस्लीम करना ही लाजिम ठहरा था कि वो शख्स इस लड़की का कोई उम्मीदवार भी हो सकता था। अब पहली फुर्सत में मुझे इस लड़की को तलाश करना था जिसकी मोहब्बत में कबड्डी का माहिर नासिर गिरफ्तार हुआ था, और इस तलाश के लिए मैं हाथ पर हाथ रखे जमील की वापसी का इंतजार नहीं कर सकता था। दोपहर के बाद मैंने एक कांस्टेबल को रवाना कर दिया था हनीफा की जानिब। हनीफा ज़बरदस्त किस्म की फाफे कुटनी थी। इसका दुनिया में कोई भी नहीं था। इसके बारे में सही तौर पर कोई भी ये नहीं जानता था कि वो रहती कहाँ है। सब इसे क्रीम क्रीम पाउडर वाली हनीफा कहते थे, या फिर चाची पाउडर और औरतों के इस्तेमाल की दीगर एशिया फरोख्त करती थी। दिलचस्प बात यह थी कि लोग तो इसके बारे में दुरुस्त मालूमात नहीं रखते थे, मगर वो सबकी सुनगुन रखती थी। और रात की बात यह थी कि वो गैर महसूस अंदाज में पुलिस के लिए मुजरी भी किया करती थी। इसलिए मैंने फिलफौर उसे थाने बुला लिया था। मैं पहले भी एक बार इसकी खिदमत हासिल कर चुका था। लगभग 5 बजे हनीफा मेरे कमरे में मेरे सामने आकर बैठी हुई थी। और चाची, क्या हाल है तुम्हारा? वो जुगत चाची थी। छोटा बड़ा हर कोई इसे चाची ही कहकर मुखातिब करता था। मेरे सवाल के जवाब में उसने कहा, अल्लाह का शुक्र है सरकार, आप सुनाएं, किस खिदमत के लिए बुलाया है? मैंने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय पूछ लिया, गुलाबपुर की तरफ कब से तुम्हारा चक्कर नहीं लगा? 1 हफ्ता पहले इधर गई थी मलिक साहब, उसने सरसरी अंदाज में कहा। क्यों, कोई ख़ास बात?
पिछली रात वहाँ एक नौजवान का कत्ल हो गया है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, उसके कातिल तक रसाई हासिल करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कत्ल वाली बात सुनकर उसका चेहरा मुतगैर हो गया। बमें करते हुए उसने मुझसे पूछा, इधर कौन कत्ल हो सकता है जी? मकतूल का नाम नासिर है, मैंने बताया। बशीर लोहार का बेटा नासिर। आज सुबह ही मैंने इसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाई है। आप कहीं उस नासिर की बात तो नहीं कर रही जो कबड्डी का खिलाड़ी भी है? वो सरसराते हुए लहजे में बोली। हाँ हाँ बिल्कुल वही। मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई। क्या तुम इस बारे में जानती हो? इसे कौन नहीं जानता मलिक साहब, वो अजीब से लहजे में बोली। वो तो गुलाबपुर वालों का हीरो था, हीरो। जनाब गांव का बच्चा बच्चा इससे मोहब्बत करता था। मुझे उसकी मौत का सुनकर बड़ा दुख हुआ है। किसी बदजात ने गुरु जवान का कत्ल किया है। उसने एक ही सामने होता सवालात कर डाले। मेरी नहीं ये बात वाकई काबिल हैरान कुन थी कि नासिर को बशीर लोहार के बेटे की बानिस्बत कबड्डी के खिलाड़ी की हैसियत से लोग ज़्यादा जानते थे। कम अज़ कम हनीफा के बेसाख्ता तबसरे से तो मैंने यही महसूस किया था। हनीफा, मैंने उसे ठहरे हुए लहजे में मुखातिब किया। अगर मुझे पता होता कि नासिर को किसी ने कत्ल किया तो मैं फ़ौरन जाकर इस बंदे को हथकड़ी लगा लेता। फिर तुम्हें थाने बुलाने और तुमसे इस किस्म की मदद लेने की ज़रूरत ही क्या थी? वो मायना खैज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली। हुक्म करें मलिक साहब, मैं इस सिलसिले में किस तरह कानून के लिए मुफीद साबित हो सकती हूँ। मुझे आपके काम आकर बड़ी खुशी होगी। मेरी दिली ख्वाहिश के नासिर का कातिल जल्द अज जल्द आईनी सलाखों के पीछे नजर आए। शाबाश, तुमने मेरी ख्वाहिश की भी तर्जुमानी की है, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। मुझे यकीन है तुम कातिल की गिरफ्तारी के सिलसिले में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हो। आप हुक्म करें, मुझे करना क्या है? वो एकदम अटेंशन हो गई। अभी थोड़ी देर पहले तुमने बड़े जज्बाती अंदाज में बताया कि गुलाबपुर का बच्चा बच्चा नासिर से मोहब्बत करता था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जी, वो असाबत में गर्दन हिलाते हुए बोली। लेकिन मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रही कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। गुलाबपुर का बच्चा बच्चा मकतूल नासिर से बेपनाह मोहब्बत करता था, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन वो जनाब गुलाबपुर की किस हसीना से मोहब्बत करता था, गाँव की किस लड़की के साथ इसका मुआशका चल रहा था? ओह, उसने एक गहरी सांस खारिज की और बोली, तो कत्ल की इस वारदात का ताल्लुक नासिर की मोहब्बत की ऐसी कहानी के साथ भी जुड़ा हुआ है। 100% हनीफा, मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। फिर वो मुझसे मुखातिब हुई। आपका मतलब है इस लड़की ने नासिर का खून किया है? नहीं, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं। मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाई। लेकिन मुझे पूरा यकीन ज़रूर है कि वो लड़की मेरे सामने आ जाए तो मैं बासानी नासिर के कातिल या कातिलों तक रसाई हासिल कर सकता हूँ। और मैंने लम्हाती तौक़ुफ़ के बाद बड़ी खोजती हुई नज़रों से हनीफा की तरफ देखा और सुनाते हुए लहजे में कहा, तुम्हारी संजीदगी और दिलचस्पी को देखकर मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि तुम नासिर के किसी ऐसे माशरे के बारे में अच्छी तरह जानती हो। अच्छी तरह तो नहीं, मगर मुझे उड़ती उड़ती खबर ज़रूर है। वो ठोस लहजे में बोली। आप मुझे एक दिन की मोहलत दें, मैं दूध का दूध और पानी का पानी अलग करके आपके सामने रख दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन का वक्त देता हूँ, मैंने इसकी फरमाइश पूरी करते हुए कहा। तुम्हारे पास कल शाम तक की मोहलत है, लेकिन थाने से निकलने से पहले तुम्हें एक काम करना होगा। उसने सवालिया नज़रों से मुझे देखा और पूछा, कौन सा काम? दूध का दूध और पानी का पानी। पानी तो कल शाम तक अलग हो सकेगा, मैंने मायनाखेज अंदाज में कहा। इस वक्त तो हम दोनों बाहम मिले हुए, यानी मसले लस्सी। जी, उसने पलकें झपकाई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बस तो फिर यहाँ से रवाना होने से पहले मुझे लस्सी की एक झलक दिखला दो, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। तुमने थोड़ी देर पहले इस बात का इकरार भी किया है कि तुम्हें नासिर के अशकिया मालूमात की उड़ती उड़ती खबर है। जी, वो उड़ती उड़ती खबर है। वो इंकशाफ करते हुए बोली। रेशमा? रेशमा? मैंने मायनाखेज अंदाज में कहा। ये रेशमा कौन है? रेशमा का असल नाम रेशम है जी, वो वजाहत करते हुए बोली। ये शकुर तरकान की बेटी इधर गुलाबपुर ही में रहता है। लेकिन मलिक साहब, वो लम्हे भर को रुकी, फिर इजाफा करते हुए बोली, अभी कच्ची पक्की इतला है, आप मुझे तस्दीक करने के लिए एक दिन दें, मैं आपसे कोई ठोस बात कल ही कर सकूंगी। ठीक है हनीफा, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। ज़रा हाथ पांव बचाकर काम करना होगा, किसी को एहसास नहीं होना चाहिए कि तुम किस मिशन पर निकली हुई हो, और इस मिशन में तुम मेरे साथ हो। तो आप तुम समझ रही हो ना? चंगी तरह समझ रही हूँ मलिक साहब, वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। और मैं हनीफा की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र भी हो गया। इससे पहले मैं यही मंजरी के काम इससे ले चुका था और इसने मुझे कभी मायूस नहीं किया था। अगले दिन मैंने दोपहर के खाने के बाद ज़ोहर की नमाज अदा ही की थी कि मुझे इतला दी गई कि गुलाबपुर से 2 अफराद मुझसे मिलने आए। मैंने इन्हें फ़ौरन अपने कमरे में बुला लिया। इनमें एक कफ़ील करियाना फिरदौस और दूसरा इनका बेटा जमील था। रस्मी अलग के बाद दराज कमत कफ़ील ने कहा, थानेदार साहब, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। जमील ने घर में कदम रखा ही था कि मैं इसे लेकर आपके पास आ गया हूँ। मैंने इसे सराहने वाले अंदाज में शाबाशी दी। कफ़ील, अगर तुम्हारी तरह हर शख्स अलग ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करे तो मुल्क हमारा जन्नत बन सकता है। बस जी, मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। कफ़ील, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर बरामदे में बैठो, मैं जमील से
चंद बातें तन्हाई में करना चाहता हूँ। जी ज़रूर। वो उठकर खड़ा हो गया, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, थानेदार साहब, आप जमील से दिल खोलकर बातें करें और मुझे इजाज़त दें। ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। वो फिर बेटे की तरफ देखते हुए बोला, जमील, यहाँ से फारिग होने के बाद तुम सीधे घर ही आना। ठीक है अब्बा जी। वो फर्माबरदारी से बोला, आप बेफिक्र होकर जाएं। कपिल थाने से रुखसत हुआ ही था कि मैं जमील की जानिब मुतवज्जा हो गया। वो एक गोरा चिट्टा और पसे कामत जवान था। उम्र 25 के इर्द गिर्द नजर आती थी। इस वक्त वो खासा गमज़दा भी दिखाई देता था। मैंने बराह रास्त गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए पूछा, जमील, तुम्हें नासिर को पेश आने वाले वाक़ये का पता चल ही गया होगा। जी थानेदार साहब। उसने असाबत में गर्दन हिलाई। मुझे इसकी मौत का जितना दुख है मैं बयान नहीं कर सकता। तुम बयान ना भी करो, मैं तुम्हारे गम को महसूस कर सकता हूँ। मैंने मदद भरी लहजे में कहा, तुम्हारे ख्याल में नासिर की मौत का जिम्मेदार कौन हो सकता है? जनाब, फौरी तौर पर तो कुछ कहना मुमकिन नहीं। वो जुबरूस होते हुए बोला, आपकी तशवीश क्या कहती है? मेरी तफ्तीश? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मेरी तफ्तीश तो किसी और ही जानिब इशारा करती है। ये बात कहते हुए मेरे ध्यान में जमील के लिए कोई भी मुनफी या शक जुदा ख्याल नहीं था, लेकिन वो बुदक कर मुझे तकने लगा और दरारी लहजे में बोला, जनाब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भला अपने दोस्त की जान कैसे ले सकता हूँ? मुझे यकीन है कि तुम नासिर की मौत के जिम्मेदार नहीं हो। मैंने तसल्ली आमेज अंदाज में कहा, क्योंकि तुम पिछले 3 दिन से गुलाबपुर में थे, है ना? फिर इसकी उलझन में और भी इजाफा हो गया। फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि आपकी तफ्तीश मेरी जानिब इशारा करती है? मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा जमील। मैंने वजाहत की मेरी तफ्तीश तुम्हारी जानिब ही इशारा करती है कि तुम मुझे नासिर के कातिल तक पहुंचा सकते हो। लम्हा से तौक़ुफ़ करके मैंने इसकी आंखों में झांका और सनसनाते हुए लहजे में कहा, जमील, क्या तुम नहीं जानते कि नासिर का कातिल जेल की सलाखों के पीछे हो? जी मैं तो यही चाहता हूँ थानेदार साहब। वो दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बीचते हुए कहा, मुझे तो वो बंदा फांसी के फंदे पर लटकता हुआ नजर आना चाहिए। मैं आपको बता नहीं सकता इस वक्त मेरे दिल की क्या हालत है। वो फांसी के फंदे तक जरूर जाएगा जमील, मैंने मजबूत लहजे में कहा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे भरपूर ताउन की जरूरत है। आप हुक्म करें जनाब। वो बड़े जोर से बोला, नासिर के कातिल को अबरतनाक सजा दिलवाने के लिए मेरी जान भी हाजिर है। जमील, मेरी तजवीज़ ये कहती कि नासिर का किसी के साथ चक्कर है और वो रात की तन्हाई में किसी से मिलने जाता है, और ये बात तुम्हें मालूम है। और और वो पहले भी ये खेल खेल चुका है। मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मुझे इसके चेहरे पर तजुब के आसार नमदार दिखाई दिए। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अंदर से कोई कुव्वत उसे ऐसा करने से रोक रही हो। मैंने वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा, देखो जमील, मैं तो हकीकत तक पहुंच ही गया हूँ, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम मुझसे किस हद तक सच बोलते हो। इससे ये भी पता चल जाएगा कि तुम अपने मकतूल दोस्त से कितने मुखलिस हो। जनाब, आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं? वो बेचैनी से बोला, वो रात की तारीकी में किसी से खुफिया मुलाकात करने वहां जाया करता था। मैंने अपनी सोच से जमील को आगाह करते हुए कहा, किसी लड़की से? आपका अंदाज़ा दुरुस्त है जनाब। मैंने बोझल सांस खारिज की। रेशमा है ना? जी। उसने इसाबत में गर्दन हिलाई। ये सिलसिला कब से चल रहा है? कोई 3 माह से, उसने जवाब दिया। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मेरे ये पसंद की आंखों ही आंखों तक महदूद थी। फिर बातचीत का सिलसिला चल निकला और पिछले 2-3 माह से वो रात की तारीकी में चुप छुप कर मिलते रहे। नासिर ने इनकी मोहब्बत का राज सिर्फ मुझे ही बताया था। वो बड़े वसूख से बोला, रेशमा और नासिर के दरमियान में ही राब्ते का जरिया था। तुम इनका राब्ता किस तरह कराया करते थे? रेशमा हमारी दुकान पर सौदा लेना आया करती थी। वो वजाहत करते हुए बोला, इसे अच्छी तरह पता है मैं दुकान पर कब बैठता हूँ और कब अब्बा। वो इसी वक्त सौदा लेने आती थी जब मैं दुकान पर मौजूद हूँ। मैं दोनों के पैगाम उधर से उधर कर दिया करता था। ओह, मैंने मुतसाफाना अंदाज में कहा, गोया तुम उन दोनों के बीच एक डाकी का काम कर रहे थे। जी, वो हल्की सी निदामत के साथ बोला। फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि वो किस रात खेतों में मुलाकात के लिए जाया करते थे? मैंने पूछा। जी हाँ, मुझे पूरी खबर होती थी। वो इंकशाफात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बोला, बल्कि मैं ही रेशमा को बताया करता था कि किस रात इसे खेतों में पहुंचना है। अगर वो अपनी आमद का यकीन दिलाती थी तो फिर मैं नासिर को बता दिया करता था। नासिर मुलाकात के वक्त से थोड़ी देर पहले वहां पहुंच जाया करता था। क्या इनकी मोहब्बत भरी इस मुलाकात के मौके पर तुम भी आसपास मौजूद रहा करते थे? मैंने कुरैत का अमल जारी रखते हुए पूछा। नहीं जनाब। वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं कभी इस तरफ नहीं गया। अलबत्ता दूसरे दिन नासिर खुद ही मुझे बता दिया करता था कि इन दोनों के बीच किस तरह की मोहब्बत भरी बातें हुई थी। अच्छा, तो तुम्हें पूरी खबर थी कि इनकी मोहब्बत की बुलंदी कितनी परवास कर रही थी? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जी थानेदार साहब, वो दोनों बहुत तेजी से करीब आ रहे थे। रेशमा का इसरार था कि नासिर फौरन अपना रिश्ता उसके घर भेजने की कोशिश करे, यानी अपने वालिदैन को रिश्ता लेने उसके घर भेजे। जमील के खास से दिलचस्प और अहम इंकशाफात कर रहा था। मुझे उम्मीद थी कि इसकी मुलायम करदा मालूमात बड़ी नतीजा खेज साबित होगी। मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूछा, क्या नासिर को भी शादी की इतनी ही जल्दी थी, या वो मिस टाइम पास कर रहा था? वो भी रेशमा को अपनाने के लिए इंतहाई संजीदा था, मगर उसकी संजीदगी में रेशमा वाली जज्बाती या बेकरारी नहीं थी।
اس نے بتایا، میں سمجھتا ہوں ریشما کی بے چینی اور اضطراب کا ایک خاص سبب تھا جس کے پیش نظر وہ جلدی کا تقاضا کر رہی تھی۔ وہ سبب کیا تھا برخودار؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تھانے دار صاحب، وہ بتانے لگا، دراصل بات یہ کہ ریشما کی ماں سردار بھی اس کا رشتہ اپنی بڑی بہن کے لڑکے سے کرنے کی خواہش مند تھی۔ آج کل ان کے گھر میں یہی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن ریشما کا باپ شکور ترکان اس رشتے کے لیے بالکل تیار نہیں اور ریشما کے ددیال میں اس کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ ریشما کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اسے پتہ ہے کہ آخر میں جیت اس کی ماں کی ہی ہوگی۔ گھر میں شکور ترکان سے زیادہ اس کی بیوی کی چلتی ہے۔ اس صورتحال نے ریشما کو بہت پریشان کر رکھا تھا۔ وہ نہ تو اپنی خالہ کے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی اور نہ ہی شکور کے خاندان میں۔ اس لیے وہ ناصر پر زور ڈال رہی تھی کہ وہ جلد از جلد اپنے باپ کو اس کے گھر بھیج دے۔ ٹھیک ہے، ریشما کی پریشانی تو سمجھ میں آ رہی ہے، میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، لیکن ابھی چند باتیں جواب طلب ہیں۔ جمیل نے میری طرف